भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। परमपूज्यानां सर्वेषां परमपूज्यानां अनन्तश्रीविभूषितानां परमश्रद्धेयानां यतिवरेण्यानां पादारविन्दानां साष्टाङ्गं प्रणमामि। एते इदमिदानीं पूज्यैः प्रधानमन्त्रिभिः सह वार्तालापं कृत्वा हिंदी भाषा कथनं वरम् अत्र समागताः सन्ति। अत्र एतेभ्यः कोई बात थोड़ा जाता है चलेगा। मैं अभी एक एक वाक्य में इनको परिचय देने के लिए प्रयत्न करूंगा। इधर उपस्थित हैं परम पूज्य श्री श्री शंकर भारती महास्वामी जी, अध्यक्ष संरक्षक वेदांत भारती संस्था का, और मैसूर के नजदीक में है एड़तरे श्री योगानंदेश्वर सरस्वती मठ के पीठाध्यक्ष हैं। बाजू में है परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री श्री गोविंद देवगिरी स्वामी जी। ये हैं पुणे में व्यास फाउंडेशन का अध्यक्ष हैं और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में ट्रेजरर भी हैं। उधर बाजू में है परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर चिदंबरानंद सरस्वती महाराज जी, हरिहर में मृत्युंजय आश्रम के अध्यक्ष हैं। हरिद्वार में मृत्युंजय आश्रम के अध्यक्ष हैं। इधर है परम पूज्य श्री श्री हरिब्रह्मेंद्रानंद तीर्थ महाराज जी, उत्तरकाशी में आदिशंकर ब्रह्म विद्यापीठ का अध्यक्ष हैं। उधर है महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री श्री विश्वेश्वरानंद गिरी स्वामी जी, रोहतक में ब्रह्म विद्या केंद्र आश्रम का अध्यक्ष हैं। उधर हैं योगी सहजानंद जी हैं हिसार से इन सबको मैं प्रणाम पुरस्सर स्वागत करके इधर आए हैं। आप लोग प्रेस मीडिया लोग आए हैं, आप सबको वेदांत भारती तरफ से और श्री शंकर वाङ्मय सेवा परिषद शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तो कार्यक्रम का आरंभ हुआ। आरंभ में मैं तो कन्नड़ भी बोलूँगा क्योंकि यहाँ अन्य सब लोग हिंदी में बोलते हैं, इसलिए वो तो विषय का पूर्ण रूप से करते हैं उसके बारे में। मैं तो कन्नड़ में बोलूँगा। ಏಕಾತ್ಮ ಭಾವ ಏಕಾತ್ಮತೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಏಕಾತ್ಮತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕಾತ್ಮತೆ, ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಏಕಾತ್ಮತೆ. ಈ ಎರಡೂ ಏಕಾತ್ಮತೆಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಏಕಾತ್ಮತೆಯೇ ಬಹಳ ಮೂಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಏಕಾತ್ಮತೆ ಒಂದು ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗ ಉಳಿದ ಎರಡು ಏಕಾತ್ಮತೆಗಳು ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಬರ್ತವೆ. ಸಮಾಜ ಸುಖಿ ಸಮಾಜವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 1230 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಏಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು ಅನ್ನೋದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಸತ್ಯ. ಮತ್ತು ಇದು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿದು ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೇರಿದು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈಗ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಾಂಗ್ಮಯ ಸೇವಾ ಪರಿಷತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೀರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಉಳಿದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೇ ನಾಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಚನೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಶಿಲಾಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ, ಏಕಾತ್ಮಭಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪಾಠ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೋ ಅಷ್ಟು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 1 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದರ್ಶನಗಳೇನಿವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದು ಸಾಂಖ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಬೌದ್ಧ ಇರ್ಬೋದು, ಜೈನ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಪರಿಚಯ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಕೇವಲ ಪರಿಚಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ದರ್ಶನಗಳ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಹಾ ಸಂರಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಂಡಲೇಶ್ವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಿಂತನ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಚಿಂತನ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35-40 ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದು ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವ ಏಕಾತ್ಮದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಶ್ರಮಗಳು, ಮಠಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ. ಅವರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ನಮ್ಮ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಲೂಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾಮಧಾರಿ ಸಿಖ್ ಸಮಾಜದ ಅವರ ಗುರುಗಳು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಚಾತ್ಮನಿ ಈಕ್ಷತೆ ಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮದರ್ಶನ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನು 3 ದಿನ 108 ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು, ಆಶ್ರಮದವರು, ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಆಸ್ತಿಕರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 26-27ಕ್ಕೆ 2 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು 26ಕ್ಕೆ, 27ಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ, ಪ್ರಯಾಗ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೇನು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರೀಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಗ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. आपको कोई पूछना है तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. मैं तो हिंदी में उत्तर उनका कथन के बाद जरूर कहूँगा. अभी गोविंद जी को केदारनाथ में भगवान आदि शंकराचार्य की मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हुए देखा. काशी में भी उन्होंने उन्हीं की प्रतिष्ठा की. तो जगतगुरु आदि शंकराचार्य महाराज थोड़ा सा आगे. हाँ तो एक ग्रहण करना ही करता है. जगतगुरु आदि शंकराचार्य महाराज जी को केदारनाथ में भगवान आदि शंकराचार्य की मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हुए देखा. काशी में भी उन्होंने उन्हीं की प्रतिष्ठा की. तो जगतगुरु आदि शंकराचार्य महाराज थोड़ा सा आगे. हाँ तो एक ग्रहण करना ही करता है. जगतगुरु आदि शंकराचार्य महाराज जिस प्रकार राष्ट्रीय एकात्मता के एक पुरोधा रहे और उन्होंने चारों पीठों में, चारों दिशाओं में चारों पीठों की स्थापना की और पूरे देश को बांधने का प्रयास किया. यह तो बात राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हुई, किंतु मानवता की दृष्टि से उन्होंने अद्वैत की प्रतिष्ठा जो की, सर्वात्म भाव जो सबके सामने रखा, वह हमारे देश के लिए और आज की मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संबल है. उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि सभी में एक चैतन्य विराजमान है और इसलिए हम लोग कृत्रिम रीति से इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं, हम अंतरंग में एक ही है. और इस बात को उन्होंने अपने जीवन में प्रतिष्ठापित किया, प्रचारित किया. उनके इसी संदेश को लेकर के और हम लोग हमारे देश और मानवता का भी अत्यंत बड़ा कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं. सभी प्रकार के भेद, इन भेदों से अतीत होकर के हम सब में एकात्मता का अनुभव कर सकते हैं. इस एकात्मता को भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने सबके सामने बड़ी प्रखरता के साथ रखा और इसीलिए वे संपूर्ण विश्व में आज अद्वैत के प्रतिष्ठापक के रूप में माने जाते हैं. उन्हीं भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का जो वाङ्मय है, उस वाङ्मय का अध्ययन अच्छी तरह से किया जाए और उनके वाङ्मय के आधार से इसी प्रकार एकात्मता का भाव, सर्वात्म भाव यह समाज में प्रतिष्ठित हो, इस दृष्टि को लेकर के पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक संकल्पना की कि अयोध्या जी में श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद की स्थापना की जाए. यहाँ पर मठों के अपने अपने नियम हैं. मठ जो संचालित होते हैं, अनेक पीठ जो संचालित होते हैं, उनके अपने अपने नियम हैं. उनके नियमों से अतीत हम लोग वाङ्मय को आधार बना करके, साहित्य को आधार बना करके, साहित्य के अध्ययन अध्यापन को, पठन पाठन को, यानी विचार को
किमौषधं तत्र विचार एव। भगवान आचार्य ने भी ये कहा है कि विचार ही औषधि है। हम उनके विचारों को आत्मसात करने का और लोगों में प्रचारित करने का प्रयास करें, उसका अनुसंधान करने का प्रयास करें, अगली पीढ़ी को वे प्रदान करने का प्रयास करें। इस दृष्टि से काशी में एक भगवान आदि शंकराचार्य के नाम से मंडित श्री आदि शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद के माध्यम से आचार्य जी का एक केंद्रीय स्थान बने, जिस स्थान में निश्चित रूप से एक उनका मंदिर भी हो, उसके साथ साथ मंदिर की प्रधानता न हो करके वहां पर ग्रंथागार, अनुसंधान विभाग और प्रशिक्षण विभाग, वेदांत के ग्रंथों का प्रशिक्षण होना चाहिए। वेदांत के ग्रंथों को और उनकी महत्ता को समझने के लिए अन्य मतों के, अन्य संप्रदायों की भी वहां पर अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अन्य संप्रदायों को भी समझ नहीं लेते तब तक समन्वय की भूमिका निर्माण नहीं होती है। और इसलिए इस प्रकार एक दार्शनिक आधार पृष्ठभूमि वाला वाङ्मय का पीठ वहां पर साकार होने जा रहा है अयोध्या जी में। हम लोग एक बात कहते आए हैं कि चूंकि मैं अयोध्या जी में भगवान श्री राम मंदिर के कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा में लगा दिया गया हूं, तो मुझे यह भी बार बार कहना पड़ता है, और जो हम लोगों की भूमिका है कि वी वांट टू मेक अयोध्या द कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सारे संसार की सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या बन जाए, इस प्रकार उसका विकास हम करना चाहते हैं। तो जब ये सांस्कृतिक राजधानी बननी है तो उसमें भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के साहित्य का भी अध्ययन होने का एक केंद्र होना चाहिए। और निश्चित रूप से यह केंद्र हमारे प्राचीन जीवन मूल्य, हमारी प्राचीन सारी वाङ्मय संपदा, उसके साथ साथ आधुनिक व्यवस्थाएं, इनको साथ में लेकर के चलने वाला होना चाहिए, ताकि वहां पर प्रशिक्षित जो युवक होंगे वे सभी प्रकार के इन दार्शनिक मतों को जानेंगे, सर्वात्म भाव का अंतःकरण में विचार रखेंगे, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति भेद, इस प्रकार का कोई भाव वहां पर अध्ययन करने वाला नहीं रखेगा। इसका हम स्वयं विचार करते हैं और इस प्रकार सर्वात्म भाव को लेकर के, एकात्मता को लेकर के जब ऐसे वहां से साधु, सन्यासी, गृहस्थ और सभी प्रकार के कार्यकर्ता निकलेंगे तो अपने आप देश में अद्वैत का, एकात्मता का, सर्वात्म भाव का प्रचार होगा, प्रकाश निर्माण होगा और यही शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम बाहर की थोपी हुई शांति, हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारे वेश अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारे पथ, संप्रदाय, मत ये अलग हैं, हमारी उपासना पद्धतियां अलग अलग है। यह सब होने पर भी हमारे भीतर का आत्म तत्व एक है। यह मूलभूत जो एकात्मता है, इसको प्रतिष्ठित करने के कारण बाहर का हम लोग जो जितना भी भेद है, इन भेदों को भुला देते हैं और एक बेसिक यूनिटी हम लोगों के भीतर निर्माण होती है। यह भाव निर्माण होना चाहिए, ये इसका मूल उद्देश्य है। उस दृष्टि से उसका अध्ययन होना चाहिए। फिर अध्ययन होना है तो उसके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए और इन व्यवस्थाओं का जब उपयोग करके वहां पर उत्तम विद्वान होंगे तो उनको बाहर जाकर के इन मतों को प्रचारित भी करना चाहिए। और इस प्रकार का जब कार्य हम लोगों को करना है तो वहां पर जो हम लोग ग्रंथागार बनाएंगे, उस ग्रंथागार में वेदांत के साथ साथ अन्य मतों का भी अध्ययन होना चाहिए। ये सारी परिकल्पनाएं लेकर के पूज्य आचार्य जी यहाँ पर विराजे हैं और हमें ये सब कुछ इतना अच्छा लगता है कि अपने आप इसमें से सनातन धर्म को ही नहीं तो भारत की एकात्मता को और मानवता के कल्याण को प्रकाश मिलेगा। भगवान आदि शंकराचार्य मानवता के कल्याण चिंतक है। भारत का हर चिंतक इसी प्रकार का रहा है और उन्हें इस प्रकार अयोध्या जी की इस पावन भूमि में एक श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद के रूप में स्थान मिलकर के जो प्रकाश निर्माण होगा वह सबके लिए कल्याणकारी होगा। परमादरणीय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी हरि ब्रह्मेंद्रानंद जी महाराज, परमादरणीय स्वामी सहजानंद जी महाराज, ये जितने भी संत हैं सभी एकत्रित होकर के आज प्रधानमंत्री जी से मिले
उसके पीछे उद्देश्य मूलतः, जैसा कि आप अभी हमारे पूज्य गोविंद गुरु जी महाराज से सुन रहे थे, भगवान शंकराचार्य के एकात्म भाव, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को, केवल भारतवर्ष को नहीं, जीव मात्र को एक बनाने की बात कही, एक होने की बात कही। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कृतित्व जिसने संपूर्ण भेदभावों को समाप्त कर दिया, जिसने संपूर्ण समाज को, संपूर्ण मानवता को जोड़ने का काम किया, ऐसी महान विभूति को हम लोग, भारतवर्ष का सामान्य वर्ग नहीं जानता है, परिचित नहीं है। उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, आप इतनी बात से समझ लीजिए कि यदि भगवान शंकराचार्य का अवतार नहीं हुआ होता तो आज भारतवर्ष में सनातन धर्म देखने को नहीं मिलता। सनातन हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा जो वर्तमान में जिस रूप में भी दिखाई पड़ रही है, किसी भी संप्रदाय के रूप में दिखाई पड़ रही है, उसके मूल में भगवान शंकराचार्य हैं। इतना महान व्यक्तित्व होने के बाद में भी सामान्य वर्ग उनसे परिचित नहीं है। तो स्वामी पूज्य स्वामी शंकर भारती जी महास्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा संकल्प है कि हम ऐसा कुछ करें कि जन जन तक भगवान शंकराचार्य का कृतित्व और व्यक्तित्व को पहुंचाया जाए। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे भगवान शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए बड़े बड़े राजाओं को शिष्य बनाया, बड़े बड़े राजाओं को बौद्ध मत से और सनातन धर्म की ओर न केवल प्रेरित किया बल्कि सनातन धर्म में घर वापसी एक तरह से किया बौद्ध मत से। जैसे उन्होंने राजाओं से संपर्क किया, ऐसे ही उन्हीं के कृतित्व को और व्यक्तित्व को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम लेकर के हम लोग भी आज हमारे देश के लोकप्रिय जनप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए गए और उनसे हम लोगों ने एक मांग की कि जैसे भगवान शंकराचार्य, जैसे अन्य अन्य विशिष्ट अवसरों पर, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म तिथि को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसे पिछले वर्ष उन्होंने श्री सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मतिथि को पराक्रम दिवस के रूप में घोषणा की, ऐसे ही हम सभी संतों ने प्रधानमंत्री जी से मांग की कि वे भगवान शंकराचार्य के जयंती के दिवस को एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में, चाहे वो सर्वात्म भाव दिवस हो, चाहे वो एकात्मता भाव दिवस हो, इस रूप में राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषणा करें। ऐसी हमने उनसे मांग की, क्योंकि जब ये दिवस घोषित होगा तो निश्चित ही लोग जानेंगे कि भगवान शंकराचार्य कौन है, उनके प्रति जानने की अभिलाषा उनके मन में अवश्य जागृत होगी। दूसरी बात, भगवान शंकराचार्य की परंपरा के जितने भी सन्यासी हैं, वे सभी सन्यासी जन जन तक पहुंचकर भगवान शंकराचार्य के कृतित्व को पहुंचाने का काम करें। इस भावना से प्रेरित होकर काशी में, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र भी है, चुनाव क्षेत्र भी है, उसी काशी में जहां पर काशी विश्वनाथ धाम की उन्होंने अभी लोकार्पण किया, पिछले महीने, शायद 2 महीने हो गए, दिसंबर में जहां लोकार्पण किया, उसी काशी में मार्च में 26-27 मार्च को एक विशाल सन्यासी समावेश का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद के माध्यम से, वेदांत भारती के माध्यम से, पूज्य स्वामी श्री शंकर भारती महास्वामी जी का बहुत बड़ा संकल्प है। वहाँ सहस्राधिक 1000 से अधिक हम संतों को एक मंच पर इकट्ठा करेंगे जो भगवान शंकराचार्य के अनुयायी हैं, जिसमें पूरे भारतवर्ष के विशिष्ट महापुरुष जो महामंडलेश्वर भी होंगे, जो अन्य पदों से सुशोभित भी होंगे। यहाँ जो संत विराजमान है वे तो वहाँ उपस्थित और उनका दायित्व है, वो तो वहाँ दायित्व निर्वाह करेंगे ही। अन्य संतों का समावेश, भव्य समावेश होने जा रहा है 26-27 मार्च को। चूंकि लोकसभा क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है वो, तो हमने ये भी मांग की कि निवेदन किया कि उस सन्यासी समावेश में आप पधारें और अपने विचार भगवान शंकराचार्य से संबंधित, उनके कृतित्व और उनके व्यक्तित्व से संबंधित जन जन को संदेश पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इस तरह से हमने आज वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके उनसे 2 विषयों को स्पष्ट रूप से रखा। और जैसा कि अभी आप हमारे गोविंद गुरु जी महाराज से श्रवण कर रहे थे, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भविष्य में वो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित होगी, ऐसा हम सबका विश्वास है। तो वहाँ पर भगवान शंकराचार्य का भी ध्यान मंदिर बने, इसकी जानकारी भी श्री गोविंद गुरु जी ने वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया। सौंदर्य लहरी आदि जो भाष्य पारायण आदि जितने भी भगवान शंकराचार्य के हैं, उसके संबंध में भी प्रधानमंत्री जी को जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त आप जो कुछ भी जानना चाहें, पूछना चाहें, पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जैसे आज प्रधानमंत्री के पास जाके आप लोगों ने जो कुछ भी आपने बताया, मंदिर बनाना, आप लोगों को जो है
तो इस तरह से तो और भी कोई संगठन आ जाएगी मंदिर बनाने की। नहीं नहीं नहीं, कोई संगठन कैसे आ जाएगा। मेरा मतलब है कि जैसा आपने अभी सुना, माननीय गोविंद देव गिरी जी महाराज से सुना हमारे, उन्होंने क्या कहा कि भगवान शंकराचार्य का एकात्म भाव जो उनकी भावना है, उनका उपदेश है, जो संपूर्ण मानवता को जोड़ने का कार्य है, कम से कम देखना तो चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा, मंदिर से आप ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे देव मंदिर होता है उस तरह से हमारा मंदिर का मतलब ध्यान मंदिर के रूप में हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अभी आपने सुना, ये भी उन्होंने कहा कि मंदिर तो गौण है, हमारा मूल है शोधन, मूल है ग्रंथालय, मूल है विचार, वैचारिक महत्ता को हम महत्व दे रहे हैं। और ध्यान मंदिर है, वहाँ जाएंगे तो कोई भी साधना कर सकता है, कोई भी ध्यान कर सकता है। उनके नाम से वहाँ मंदिर एक शुभ रूप में आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि वहाँ भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसी के हम तुलना में कोई मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी गलतफहमी मत रखिए। मेरा कहने की ये मतलब है कि जो आपका इंटेंशन इज नाइस, इट इज वेरी मच, सो देयर आर आई मीन क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, तो यही तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि दूसरे कैसे आएंगे, उनका कोई आधार तो होना चाहिए। जैसे भगवान शंकराचार्य का आधार पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज ने अभी स्पष्ट किया कि उन्होंने मानवता को जोड़ने का काम किया, एकात्म भाव का काम किया, संपूर्ण समाज को जोड़ने का एक संदेश दिया, और उन्होंने जोड़ने वाली चीजों को ऊपर से थोपा नहीं, नकली एकता को नहीं दिखाया। उन्होंने कहा हम चैतन्य भाव से, आत्म भाव से एक है। और इस बात को अगर समझ ले व्यक्ति तो संसार में झगड़े ही खत्म हो जाए। तो ये महत्व को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकता है, इसलिए वहाँ अयोध्या में हम ध्यान मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं। क्या कि इसमें जो हमारी संस्कृति जो अभी लुप्त हो रही है, जो संस्कृत भाषा है, क्या इस के थ्रू हम वहाँ पे कुछ ऐसे गुरुकुल और इसका भी निर्माण करेंगे? निश्चित रूप से बताया ना, ग्रंथालय तो होगा, ये साथ साथ में शोधन केंद्र भी होगा। पहले मैं इसका उत्तर तो आप दीजिएगा, लेकिन भाई साहब ने जो पूछा उसके बारे में कुछ बतलाना चाहता हूँ। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के विचारों की एक विशेषता आप जान लीजिए। उनके विचारों में एक विशेषता यह है, वे ये कहते हैं कि लोगों का, विचारकों का आपस में कितना भी मतभेद होगा, हमारा किसी के साथ मतभेद नहीं है। परस्परम विरुद्धन्ते तैर अयम न विरुद्धते, हम किसी के विरोध में नहीं है, कैसे जाए इसके पक्षपाती है। और ये कहने वाले केवल आचार्य जी हैं। गलती से लोग भगवान शंकराचार्य जी को शैव मानते हैं, वे शैव भी नहीं है। वे तो जहां जिस तीर्थ में गए वहां की देवता की स्तुति किए, वहां की नदी की स्तुति किए, वहां के पर्वत की, उस तीर्थ की स्तुति किए। गंगा जी गए गंगा जी की किए, जमुना जी गए जमुना जी की किए, कावेरी गए कावेरी की किए, और पंढरपुर गए तो भगवान पंढरनाथ का किए। देवी की, शिव जी की सभी प्रकार की स्तुतियां, सभी प्रकार की उपासनाएं उनमें ग्राह्य है। तो सबको जोड़ने वाले एक आचार्य के रूप में उनका नाम भौगोलिक दृष्टि से, सीमाओं की दृष्टि से चारों मठ, चारों दिशाओं में उन्होंने किए, पूरे देश की परिक्रमा में किए, और विशेष महत्व है। बहुत बढ़िया। एक जो मथुरा, जो अयोध्या हो चुका है, काशी का लगभग निर्माण हो चुका है, क्या अब मथुरा के लिए भी प्रधानमंत्री जी से आपने? नहीं, मूलतः हम लोग हमारे काम में व्यस्त हैं। हम लोग हमारे काम में व्यस्त हैं। मथुरा जी का काम होना चाहिए ऐसी हमारी इच्छा होगी भी, है भी, किंतु हमने इसके बारे में कोई उल्लेख उनके पास किया नहीं, करना चाहते भी नहीं। और ये काम हो जाए, ये तो ईश्वर की इच्छा रहेगी तब होने वाला है, क्योंकि जो काम जब जब समय आया तो होता ही गया है। लेकिन आज की चर्चा हमने उसके बारे में की नहीं, हमने अपने में भी कभी उसका चिंतन किया नहीं। हाँ, निवेदन केवल इतना ही है कि आज का जो हमारा विषय था वो भगवान शंकराचार्य से संबंधित था, तो हमने दूसरे विषयों की बात नहीं की। लेकिन जहाँ तक आपकी मान्यता, आपकी भावना है, वो तो होने ही वाला है, उसमें कोई संशय किसी को है नहीं जी। तो हमारा जिंदगी तो बड़ा वैचारिक लाइफ है, तो सबके अंदर है, लेकिन समाधान हमको कहीं प्राप्त नहीं होता। उसी समाधान के हम एक स्थान पड़ेगा। ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ಭೂಮಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ರಿ ಈಗ? ಹಾ, ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕತೆ ಬರೋದು.
अयोध्या के बारे में हिंदी में पूछिए, मैं बोलता हूँ। लेकिन वही सांस्कृतिक राजधानी बनने वाला है अयोध्या, वहाँ हाँ। पे तो आपने भूमि मांगा है हाँ। निगम पार्टी के हाँ। पक्ष में, और ऐसे ही हमने उनसे भूमि नहीं मांगा है। नहीं मांगा है। नहीं, यहाँ पे लिखा है हमने मांगा है करके। मतलब सरकार के पास, सरकार के यूपी सरकार के पास। सरकार के पास हाँ। ऐसे कभी बहुत मांगे हैं ना, जैसे कुछ नहीं। ऐसा है, अयोध्या को हम सांस्कृतिक राजधानी बनाना चाहते हैं। यह मंदिर के न्यास की ओर से, ट्रस्ट की ओर से तो हम बताया अपना गया, काम, मांगा नहीं है, उनको बताया गया, सूचित किया गया। हम अपना काम मंदिर के परिसर में और मंदिर का काम कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री माननीय योगी जी जो मंदिर के बाहर की अयोध्या है उसका जो विकास कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ अयोध्या फेडरेशन जो बना, कॉर्पोरेशन जो बनाया है, वो अपना काम कर रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि अनेक लोग अपने लिए जमीन मांगेंगे, तो मांग भी रहे हैं, वो उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। सभी समाज, सभी प्रदेश और सभी संप्रदाय के लोग उनके पास जमीन मांग सकते हैं, ये स्वयं उन्होंने कहा है। उसके लिए बहुत बड़ी भूमि संपादन उन्होंने की है और सबको वो अपना अपना हिस्सा देने वाले हैं। तो इसलिए अन्य लोगों के साथ हम भी मिलकर के भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का वहाँ पर एक स्थान बनाना चाहते हैं, जिसका मूल आधार उनका वाङ्मय होगा, उनका विचार होगा। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमने प्रधानमंत्री जी को जो हम जमीन अधिग्रहण करने वाले या लेने वाले, खरीदने वाले, इसका हमने विवरण दिया। इसका विवरण दिया है और प्रक्रिया भी जारी है करके इसमें लिखा है। हाँ, प्रक्रिया जारी है, लेकिन मांग नहीं की है। ये जमीन जो है ये मूल अयोध्या में होगी ना आउटर अयोध्या? नहीं, मूल अयोध्या में, मूल अयोध्या। मूल अयोध्या में। कितना बड़ा? अब वो हम विमर्श कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। एकड़ का जमीन का प्रपोजल सरकार को दिया है? सरकार को अभी नहीं, 15 acres. 15 15 acres.